Hi friends, this is your A sir. Today I have come up with a new concept in general English. In all competitive examinations, we find at least one question carrying 5 marks of this concept. It is verb forms. It is verb forms. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the correct verb form that suits according to the tense. Let me repeat. In this type of questions, a blank is given followed by four alternatives. The candidate is required to choose the right verb form that suits according to the tense. Here is your first question. My friends dash the Prime Minister yesterday. Let me repeat. My friends dash the Prime Minister yesterday. Here are your four options. A. See. B. Is seeing. C. Has been seeing. D. Saw. Let me repeat. A. See. Is seeing. B. Has been seeing. C. Saw. D. The right answer is saw. The reason is दिया हुआ वाक्य में आपको एक पास्ट टाइम मार्कर है. पास्ट टाइम मार्कर क्या है? एस्टरडे. अगर दिया गया वाक्य में कोई पास्ट टाइम मार्कर्स हो जैसे कि एस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तब वर्ब V2 फॉर्म का वर्ब लेना चाहिए. यानी सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य को लिखना चाहिए. सो सा V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन डी सा है. माय फ्रेंड्स सा द प्राइम मिनिस्टर एस्टरडे. This is your next sentence. It started to rain while we dash tennis. It started to rain while we dash tennis. Here are your four options. A. Played. B. Are playing. C. Were playing. D. Had been playing. A. Played. B. Are playing. C. Were playing. D. Had been playing. सही उत्तर है ऑप्शन सी वर प्लेइंग. क्योंकि अगर कोई भी दो क्लॉजेस को वाइल या व्हेन के साथ जोड़ा जाते हैं तो एक क्लॉज सिंपल पास्ट में हो, दूसरा क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए. तो दिया गया वाक्य में इट स्टार्टेड सिंपल पास्ट में है, इसलिए वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस होना चाहिए. दूसरा क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए. Here is your next sentence. He often dash coffee. He often dash coffee. Here are your four options. A. Drinks. B. Drank. C. Drinking. D. Drunk. A. Drinks. B. Drank. C. Drinking. D. Drunk. आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए ड्रिंक्स. सही उत्तर ऑप्शन ए ड्रिंक्स. क्योंकि दिया गया वाक्य में ऑफन है. ऑफन का मतलब अक्सर.
जो व्यक्ति अक्सर जो काम करता है वह हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल एक्शंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इसलिए ही ऑफन ड्रिंक्स कॉफी। योर नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक देयर somebody dash into the lake. Look there, somebody dash into the lake. Your four options are jumped, B jumps, C is jumping, D has been jumping. A jumped, B jumps, C is jumping, D has been jumping. So here the right option is C, is jumping. Right option is jumping. The reason is अगर दिया गया वाक्य में look या see के साथ शुरू होते हैं, verb see और look के साथ शुरू होते हैं, तो उस क्षण में जो घटना घटती हो उसके बारे में ब्यौरा दिया जाता है। इसलिए उस क्षण का होता हुआ कार्य का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसीलिए इस वाक्य में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, वह है इज जंपिंग। लुक देयर somebody is jumping into the lake. Here is your next sentence. Susie dash not dash her homework yet. Susie dash not dash her homework yet. Here are your four options. A is completing, B was completing, C has completed, D had completed. A is completing, B was completing, C has completed, D had completed. आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैज कंप्लीटेड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैज कंप्लीटेड, क्योंकि दिया गया वाक्य में वैयटी यट है। यट का मतलब अब तक, यानी पूर्व में कुछ समय में वह कार्य शुरू हुआ है, अब तक वह कार्य होता रहा है। इस प्रकार का क्रिया को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, सुसी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट। यहाँ पर और एक बात भी हम याद दिलाना चाहते हैं, वह है अगर दिया गया वाक्य में येट या स्टिल हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और वह वाक्य नेगेटिव होगा। क्या है? अगर दिया गया वाक्य में वैयटी येट या स्टिल STILL स्टिल हो, उस वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। Here is your next sentence. Mumbai dash one of the largest cities of India. Mumbai dash one of the largest cities of India. Here are your four options. A is, B was, C has, D had. A is, B was, C has, D had. आपका सही उत्तर है ए,
इज। आपका सही उत्तर इज है, क्योंकि मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। ये एक नित्य सत्य वाक्य है। हमेशा, आज भी वह लार्जेस्ट सिटी है, कल भी होगा और कल भी था। सो इस प्रकार का नित्य सत्य, जो वाक्य हमेशा सच्ची हो, उस प्रकार का वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मुंबई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। सो हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। आई डैश every day to keep myself fit. I dash every day to keep myself fit. Here are your four options. A. Exercises. B. Exercised. C. Exercise. D. Exercising. A. Exercises. B. Exercised. C. Exercise. D. Exercising. Your right option is C. Exercise. I exercise every day to keep myself fit. क्योंकि दिया गया वाक्य में एवरीडे प्रयोग किया गया है। एवरीडे का मतलब प्रतिदिन। जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप माई सेल्फ फिट। हियर इज योर नेक्स्ट सेंटेंस। शी डैश guitar when I entered the room. She dash guitar when I entered the room. Here are your four options. A. Plays. B. Was playing. C. Is playing. D. Played. A. Plays. B. Was playing. C. Is playing. D. Played. आपका सही जवाब है बी, was playing। was playing सही जवाब है, क्योंकि दिया गया वाक्य में दो क्लाजेस हैं। पहला क्लाज शी डैश गिटार, दूसरा क्लाज आई एंटर्ड द रूम। दोनों को when से जोड़ा जाता है। अगर दो क्लासों को when के साथ जोड़ा जाता हो तो एक क्लास का वर्ब सिंपल पास्ट में हो तो दूसरा क्लास का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसलिए शी वॉज प्लेइंग गिटार व्हेन आई एंटर्ड द रूम। Here is your next question. Last year we dash you. Last year we dash you. Here are your four options. A. Went. B. Was going. C. Is going. D. Go. A. Went. B. Was going. C. Is going. D. Go. आपका सही जवाब ऑप्शन ए, वेंट। आपका सही जवाब ऑप्शन ए, वेंट, क्योंकि दिया गया वाक्य में पास्ट टाइम मार्कर लास्ट ईयर है। दिया गया वाक्य में पास्ट टाइम मार्कर लास्ट ईयर है, इसलिए हम उस वाक्य का टेंस को सिंपल पास्ट में लिखना चाहिए। लास्ट ईयर वी वेंट जू।